أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, अब जिगर थाम कर बैठे, क्यों मैं आपके सामने एक ऐसे फनकारे अदीब और शोलों को हवा देने वाले बेबाक खतीब को पेश करने जा रहा हूँ, जिनकी जाते मोहताज तारुफ नहीं, बंगाल की खाड़ी से लेकर कश्मीर की कन्याकुमारी तक जिनकी शोहरत का डंका बज रहा है, जिनकी फलसफियाना खिताबत की शोहरत पूरे शहर में बुए गुल की तरह फैल जाती है। शहर अंगेज खिताबत से अगर खून में ताजगी और रूह में बालिदगी पैदा होती है तो साथ साथ जहालत की तारीकियां छट जाती है। हजरत वाला की तकारीर अगर आशिकाने मुस्तफा के लिए सरापा तनवीर है तो दुश्मनाने मुस्तफा के लिए बरहना शमशीर भी हुआ करती है। ये कहना बजा हक होगा कि उनकी तकरीर तबा यार को बेचैन करती है। सबब ये है वही कहते हैं जो दिल पर गुजरती है, कभी शोला कभी शबनम हंसी तकरीर होती है, नबी के बागियों के वास्ते शमशीर होती है। मैं बड़े अदब के साथ हजरत वाला से गुजारिश करूंगा, जनाब मुफ्ती अकीलुर रहमान साहब कासमी मुहतमिम जामिया अबू बकर सिद्दीक कांति नगर दिल्ली से, हजरत वाला से मैं बड़े अदब के साथ गुजारिश करूंगा कि तशरीफ लाएं और बेहतरीन खूबसूरत अंदाज में हम सबको नसीहत फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह الذي خلق الإنسان من نطفة अल्हम्दुलिल्लाह الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا وإمامنا وسندنا وهادينا ومرشدنا ونبينا ورسولنا وأفضلنا ومتاعنا ومكرمنا ومحترمنا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله لا رسول بعده ولا رسالة بعده لا نبي بعده ولا نبوة بعده أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى
وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وقال تعالى: وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وقال الله تبارك وتعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. صدق الله العلي العظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. درود شریف پڑھ لیجیے. عزت و احترام کے مستحق صدر محترم اکابر علماء کرام، محبتوں کے مستحق بزرگوں نوجوانوں، پسِ پردہ ماں اور بہنوں، پیارے بچوں، دین کی قیمتی اور اہم باتیں تو آپ کے سامنے آ چکی ہیں الحمدللہ۔ رب کائنات مجھے بھی آپ کو بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک لمبا سفر کر کے آپ حضرات کے دیار میں حاضری ہوئی ہے۔ چند باتیں آپ حضرات کے سامنے گوش گزار کرنا چاہوں گا۔ اس سے پہلے میں چاہتا ہوں چند اشعار ہیں، دعائیہ مناجات ہے اللہ کے دربار عالیہ میں، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں پیش کر دوں۔ جی اللہ ہم سب کے حق میں قبول فرما لے۔ آپ لوگ آمین کہتے رہیں گے تو اچھا لگے گا، ٹھیک ہے؟ مجھے درد محبت دے خدایا اپنی الفت دے، مجھے درد محبت دے خدایا اپنی الفت دے، تیری یادوں میں بیتے جو مجھے وہ شام خلوت دے، تیری یادوں میں بیتے جو مجھے وہ شام خلوت دے، یوں ہی پھرتا رہوں گا کب تلک خواہش کے دلدل میں، یوں ہی پھرتا رہوں گا کب تلک خواہش کے دلدل میں، تیری خواہش ہو یا رب یاد دلبر کی حلاوت دے، تیری خواہش ہو یا رب یاد دلبر کی حلاوت دے، تیری یادوں میں بیتے جو مجھے وہ شام خلوت دے، پڑا ہوں تیرے در پر تیرا طالب بن کے مولا، پڑے تیرے در پر تیرے طالب بن کے مولا، تو اخلاص
मोहब्बत दे, हमें नूरे हिदायत दे, तू इखलास मोहब्बत दे, मुझे नूरे हिदायत दे, तेरी यादों में बीते जो मुझे वो शाम खलवत दे। बहुत तारीक शब है और रस्ता है कठिन मौला, बहुत तारीक शब है और रस्ता है कठिन मौला, मुझे तू शौक मंजिल में फनाए दिल की निअमत दे, तेरी यादों में बीते जो मुझे वो शाम खलवत दे, करूं कुर्बान अपनी चाहतों को तेरी चाहत पर, करूं कुर्बान अपनी चाहतों को तेरी चाहत पर। नात पढ़ने पर भी नाम दिया। करूं कुर्बान अपनी चाहतों को तेरी चाहत पर, बड़ी ही आरज़ू है चाहते दिलबर की चाहत दे, बड़ी ही आरज़ू है चाहते दिलबर की चाहत दे, तेरी यादों में बीते जो मुझे वो शाम खलवत दे, मुझे दर्द मोहब्बत दे, खुदाया अपनी उल्फत दे, तेरी यादों में बीते जो मुझे वो शाम खलवत दे। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। अल्लाह हम सब के हक में इस दुआ को, इस मुनाजात को कबूल फरमा ले। कुरान की चंद आयत मैंने आपके सामने पढ़ी हैं, कोशिश करता हूँ चंद बातें आपको कुरान के ताल्लुक से आप हजरात के सामने रखता चलूं, फिर अपनी जगह ले लूं। बता दें कहां ये 12:53 पे खत्म करना है? नहीं, खत्म कब करना है मुझे ये बता दो। अच्छा नहीं, कभी मैं वक्त ज्यादा ले है ना, बस ये बोर होते रहे बेचारे और मैं करता रहूं काम। वो एक साहब तकरीर कर रहे थे बेचारे, जोशीले मुकर्रिर थे, थके नहीं करते करते वो इत्तेफाक ऐसा हुआ कि उठ के सभी जाने लगे। एक गया तो पहले तो जाता ही नहीं, कोई शर्म से लगती है शुरू में उठते, बाद में जब एक उठ जाता है तो लोगों की शर्म खत्म हो जाती है। एक गया, दो गया, तीन गया, एक ही बचा बेचारा। तो वाकया मशहूर है, कहने लगा भाई तुम्हारी समझ में आ रहा है? बोले जी मेरी समझ में कहाँ से आए, जिन्होंने जलसा कराया था वो भी चले गए, मैं तो माइक वाला हूँ, इंतजार कर रहा हूँ कब खत्म करोगे, कब माइक लेकर जाओगे। मैं नहीं चाहता कि आप के बाद दीगरे निकल जाओ। आपका जब तक दिल करे तो आप सुन लें, इंशाल्लाह जब आपका दिल भर जाए तो कह दे मैं खुद बंद कर दूंगा, ठीक है। ये जो आयत करीमा मैंने आपके सामने तिलावत की है, मेरे रब ने फरमाया या अय्युहन नास क़द जाअतकुम मौइज़तुम मिर रब्बिकुम व शिफ़ाउन लिमा फ़िस सुदूर व हुदन व रहमतुल लिल मुमिनीन कुल बिफ़ज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फ़ल्यफ़रहू हुवा ख़ैरुम मिम्मा यजमऊन। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, दुनिया के इंसानों, हमने तुम्हारी जानिब मौइज़त, नसीहत, एक पैगाम आपके दरबार में भेजा है, आप लोगों के सामने भेजा है, और वो नसीहत का खजाना है और लोगों के लिए शिफा का जरिया है। जो दिलों में रोग पलते हैं, दुनिया की मोहब्बत, जाहो जलाल की मोहब्बत, शोहरत
शोहरत की मोहब्बत, लोगों के लिए हसद का पलना, लोगों के लिए बुग़्ज़ का आना, लोगों के लिए दुश्मनी का आना, इन तमाम बुराइयों से निकाल कर, इन तमाम बुराइयों को निकाल कर आपके दिल को जिला बख्शेगा, आपके दिल की सफाई करेगा, आपके दिलों को रोग से मुक्त करेगा, आपके दिल में शिफा पैदा करेगा। वहुदन व रहमतुल लिल मुमिनीन, और अल्लाह ने इस कुरान को हिदायत का जरिया भी बनाया, अल्लाह ने इसे रहमत का जरिया भी बनाया। और मेरे रब ने जो आगे बयान फरमाया वो गौर से सुनने वाली बात है। मेरे रब्बे करीम ने फरमाया कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमति फबिज़ालिका फलयफ़रहू हुवा खैरुम मिम्मा यजमऊन। अल्लाह तबारक व तआला की रहमत कामिला का मजहर अदम ये है, रहमान की रहमानियत का मजहर अदम ये है कि उस रब ने आपको अपना कुरान दे दिया। मेरे रब ने कुरान करीम में फरमाया अर्रहमान अल्लमल कुरान खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। अल्लाह की रहमान की रहमानियत का मजहर अदम, इससे बड़ा कोई और रहम नहीं हो सकता कि रब ने अपना कलाम तुम्हें इनायत फरमाया। अब मेरा रब कहता है फबिज़ालिका फलयफ़रहू, लोगों अगर ये कुरान आपको मिल जाए, ये दौलत आपको मिल जाए, आपके सीनों में उतर जाए, ये आपके घरों में आ जाए, ये आपकी औलादों को मिल जाए, ये आपकी जबानों पर जारी हो जाए, ये दौलत अगर आपको मिली है फबिज़ालिका फलयफ़रहू, तो मेरा रब कहता है लोगों खुशियां मनाना, लोगों खुशियां मनाना। दौलत के मिलने पर नहीं, जाहो जलाल के मिलने पर नहीं, MP MLA बनने पर नहीं, आलीशान बंगला बनाने पर नहीं, गाड़ियों के मिल जाने पर नहीं। अगर खुशियां मनानी है तब मनाओ जब अल्लाह तुम्हें कुरान की दौलत दे दे। खुशियां मनानी है तब मनाओ जब अल्लाह आपके सीने से कुरान को भर दे, सीने में कुरान को भर दे। खुशियां मनानी है उस वक्त बनाओ जब आपकी जबानों पर अल्लाह का कुरान जारी हो जाए, आपकी जबानें इस काबिल हो जाए। मेरे रब ने कुरान करीम में फरमाया फमन युरिदिल्लाहु अन यहदियहु यशरह सदरहु लिल इस्लाम। अल्लाह जिसके लिए भलाई का इरादा चाहे, अल्लाह जिसके लिए बेहतरी का इरादा चाहे, दूसरे लफ्जों में ये कहिए अल्लाह जिससे मोहब्बत करना चाहे, अल्लाह जिससे प्यार करना चाहे, अल्लाह जिससे अपनी मोहब्बत की नजर डालना चाहे, तो मेरा रब क्या करता है उसके सीने को खोलेगा, इस्लाम की मोहब्बत डालेगा, अल्लाह कुरान की मोहब्बत डालेगा, अल्लाह कुरान वालों की मोहब्बत डालेगा। जिनके सीनों में कुरान आ जाए, जिनके सीनों में कुरान की मोहब्बत उतर जाए, जिनके सीनों में कुरान वालों का प्यार आ जाए, ये अल्लाह के राजी होने की एक बड़ी निशानी है। फमन युरिदिल्लाहु अन यहदियहु यशरह सदरहु लिल इस्लाम। मेरे प्यारो, अल्लाह ने कुरान आपको दिया किस लिए? खाली इसको पढ़ते जाए, इससे नसीहत हासिल कौन करेगा? ये लोगों के दिल से रोग को कब निकालेगा? हमारी जिंदगी की बुराइयां कब निकालेगा? सहाबाई किराम को ये कुरान मिला, उन्होंने कुरान को पढ़ा, उन्होंने कुरान को समझा, कुरान करीम पर अमल किया, इसको सारी दुनिया में फैलाया। और ये कुरान के 4 हक हैं। कुरान करीम पर ईमान लाया जाए, ये तो हक है ही, लेकिन उसके बाद इस कुरान करीम को पढ़ना, इस कुरान करीम को समझना, इस कुरान करीम पर अमल करना और सारी दुनिया तक इसको पहुंचाने की नियत करना और कोशिश करना, जो ये उलमा इकराम किसी दर्जे तक करते, ज्यादा नहीं लेकिन किसी दर्जे। अल्लाह तबारक व तआला ने आपको कुरान दिया है, ये नसीहत के लिए आया, आपको सुधारने के लिए आया। रब ने कुरान करीम में फरमाया इन्ना हादल कुरान यहदी लिल्लती हिया अक़वम। अल्लाह तबारक व तआला ने इस कुरान को लोगों के लिए हिदायत का जरिया बनाया, लोगों को संवारने का जरिया बनाया। लोगों को संवारने के लिए अल्लाह का कुरान आया, लोगों को बचाने के लिए अल्लाह का कुरान आया। एक शराबी को शराब से बचाने के लिए, एक जानी को जिना से बचाने के लिए, एक काफिर और मुशरिक को शिर्क से बचाने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने इस कुरान को दुनिया में उतारा। इन्ना हादल कुरान यहदी लिल्लती हिया अक़वम। ये कुरान आया है आपको संवारने के लिए, आपको सजाने के लिए, आपको इंसान बनाने के लिए। अल्लाह ने ये कुरान तुम्हें इसलिए दिया है कि एक औलाद माँ बाप की इताअत करने वाली बने। अल्लाह ने कुरान इसलिए दिया है कि माँ बाप अपनी औलाद की जिम्मेदारी उठाने वाले बने। अल्लाह ने कुरान तुम्हें इसलिए
इसलिए दिया है ताकि तमाम तर गलाज़तें तुम्हारी जिंदगियों से निकले, तुम्हारे माशरे से निकले, तुम्हारे घरों से निकले, और अल्लाह तबारक व तआला आपके माशरे को पाक और साफ कर दे। इन्ना हादल कुरान यहदी लिल्लती हिया अक़वम, अल्लाह ने इस कुरान को तुम्हारे लिए हिदायत का जरिया बनाया, तुम्हें सवारने का जरिया बनाया। सुम्मा क़सत क़ुलूबुकुम मिन बअदि ज़ालिका फ़हिया कल हिजारा, अल्लाह ने जिनके दिलों की कैफियत को बयान किया उनके दिल तो पत्थर से भी ज्यादा सख्त थे, लेकिन जब कुरान आया तो कुरान ऐसा हिदायत बनकर आया, उनके दिल सवार दिए गए। उनके दिलों में बुग़्ज़ था वो निकलकर साफ हो गया, उनके दिलों में दुनिया के माल की मोहब्बत थी, लोगों के उनके दिलों से माल की मोहब्बत निकल गई, यहाँ तक कि उन्होंने गरीबी की जिंदगी गुजारी, फकीरी की जिंदगी गुजारी और माल की तलब ना की और माल की जानिब मुड़कर देखा भी नहीं। जब कुरान आया वो लोग ज़ानी थे, बदकार थे, लेकिन जिना से बचने वाले बन गए। वो लोग शराबी थे, शराब से बचने वाले बन गए। हाँ हाँ, तारीख गवाह है, ताजदारे मदीना इमामुल अंबिया का एक गुलाम उठा और मदीने की गलियों में ऐलान किया, ए मदीने के रहने वालों, अल्लाह ने शराब को हराम कर दिया। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिर वल अंसाब वल अज़लाम रिज्सुम मिन अमलि शैतान। तारीख बताती है, कहने वाले ने कहा लोगों के हाथ में शराब थी, उन्होंने जाम फेंक दिए, उनके हलकों में शराब थी, हाथ डाला और केकर डाली, लोगों के मटकों में शराब थी। सहाबा की जमात आई, या नबी अल्लाह, लाखों का माल मौजूद है, अगर आपकी इजाजत हो काफिरों के हाथ बेच डाले। मेरे आपके आका ने फरमाया जिसका पीना हराम उसका बेचना भी हराम। सहाबा ने लाखों के माल को आग लगा दी, लेकिन हाँ जब कुरान का हुक्म आया तो कुरान उनके लिए हिदायत का जरिया बनकर आया, उससे बगावत करने वाले सहाबा नहीं बने। अल्लाह ने आपको भी कुरान दिया है, सहाबा को भी कुरान दिया था, बस बात इतनी है कि न हमने कुरान पढ़ा है, न समझा है, न इसकी अजमत को दिल में उतारा है। हम लोगों से सलाह लेते हैं, कारोबार के लिए हम लोगों से मालूम करते हैं, दुनिया में चलने के लिए हम बड़े बड़े फलासफरों की राय लेते हैं। अल्लाह के बंदो, दुनिया के सारे फलासफर सिर्फ और सिर्फ कुरान उठाकर अपनी जिंदगी की राय। अजीब बात ये कि हमसे पढ़ना नहीं आता, हमसे आता भी है तो तर्जुमा नहीं आता। अब आप ये बताओ, जब आपको तर्जुमा नहीं आएगा आप नमाज पढ़ने खड़े हो जाओगे, आपको नमाज में लज्जत आएगी? मैं सवाब की बात कर ही नहीं रहा यहाँ पर, सवाब छोड़ो, अल्लाह जन्नत दे क्या दे वो उसका निजाम है, अपने बंदे को माफ करे वो अल्लाह का निजाम है, मैं उसकी तफसील में जाना ही नहीं चाहता। मैं इतना कहना चाहता हूँ, रब ने आपको कुरान इसलिए दिया था ताकि आप हिदायत पाकर अल्लाह आपको जमीन का बादशाह बना दे। रब ने कुरान करीम में क्या फरमाया, वला तहीनु वला तहज़नु व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन। मेरे रब ने क्या फरमाया, अन्नल अर्ज़ यरिथुहा इबादियस सालिहून, इस जमीन का वारिस अल्लाह अपने नेक बंदों को बनाएगा, इस जमीन का वारिस अल्लाह ईमान वालों को बनाएगा, इस जमीन का वारिस अल्लाह किन लोगों को बनाएगा जिनके सीनों में कुरान होगा, जो कुरान के पढ़ने समझने वाले होंगे, कुरान करीम पर अमल करने वाले होंगे। और याद रखना, ये ताजदारे मदीना का फरमाने आली है, एक जमाना आएगा फितनों की बौछार होगी, फितने निकलने वाले होंगे। हजरत अली ने फरमाया, या रसूल अल्लाह मल मखरज अनहा, निकलने का रास्ता बताओ, मैं उन फितनों से कैसे बच जाऊं। या नबी अल्लाह, वो तमाम तर शुरूर और फितन दुनिया में आएंगे, मेरे लिए बचने का रास्ता बताओ। मेरे आपके आका ने इरशाद फरमाया, बचने का रास्ता सिर्फ और सिर्फ अल्लाह का कुरान है। जिसके पास अल्लाह का कुरान होगा वो फितनों से बचेगा, और जो कुरान से दूर होगा वो फितनों में मुब्तला हो जाएगा। अल्लाह के कुरान को पढ़ो, इसमें अल्लाह ने तुम्हारे लिए नसीहत छिपा कर रखी है। अल्लाह ने इसे आपके लिए शिफा का जरिया बनाया, हिदायत का जरिया बनाया। अल्लाह ने इसे आपके लिए रहमत का जरिया बनाया। आपके दरमियान में रहमत होगी। अल्लाह कल क़यामत के मैदान में पहुंचोगे, अपने बंदों पर रहम करेगा, और हाँ उन पर रहम करेगा जिन्होंने दुनिया में कुरान करीम को मोहब्बत से देखा, कुरान वालों को देखा, कुरान को देखा, अपने सीने से लगाया या कुरान वालों का ताउन किया।
एक हदीस जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आपके दरबार आलिया में रखता चलो। मेरे आपके आका ने फरमाया कल क़यामत का मैदान होगा, अल्लाह जिब्रील को पुकारेगा, जिब्रील से कहेगा जिब्रील मेरी अमानत कहाँ है? तो जिब्रील कहेंगे मौला तेरी कौन सी अमानत? ईसा की अमानत तूने मुझे दी, दाऊद की अमानत तूने मुझे दी, हजरत मूसा की अमानत तूने मुझे दी, कौन सी अमानत का सवाल करता है? अल्लाह फरमाएगा मेरी अमानत, मेरे कुरान को तुमने कहाँ डाला? हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम वस्सलाम फरमाएंगे मौला तेरे कुरान को तेरे लाडले को देकर आया, तेरे हबीब को देकर आया, तेरे नबी को देकर आया। अल्लाह फरमाएगा अच्छा तो जाओ मेरे लाडले को बुला कर लाओ, मैं अपने हबीब से सवाल करूं मेरे कुरान का क्या हक अदा किया, मेरे कुरान को कहां डाला? ताजदार मदीना ने फरमाया मैं अल्लाह के दरबार आलिया में हाजिर हो जाऊंगा, अल्लाह के नबी को लाया जाएगा, अब मेरा रब मालूम करेगा लाडले पैगंबर क्या ये जिब्रील कुरान मेरा आप तक लेकर आया, मेरी किताब आप तक लेकर आया? मेरे आपके नबी फरमाएंगे जी मौला तेरा कुरान मेरे पास लेकर आया, अमानतदारी के साथ लेकर आया। तो मेरा रब कहेगा अच्छा इस जिब्रील ने आपको मेरा पूरा कुरान दे दिया? जी हाँ दे दिया। तो लाओ मेरे कुरान को आपने कहां डाला, मेरे कुरान का तुमने क्या हक अदा किया? अल्लाह ने कुरान करीम में जो फरमाया या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिक व इन लम तफअल फमा बल्लगत रिसालता वल्लाहु यअसिमुका मिनन नास वल्लाहु इन्नल्लाह ला यहदिल कौमल काफिरीन। अल्लाह तबारक व तआला ने इस पैगाम को लेकर अपने नबी से कहेगा लाओ मेरे कुरान का क्या हक अदा किया, इसका तुमने कहां तक हक अदा किया? ताजदार मदीना फरमाएंगे वो कुरान तो मैं अपनी उम्मत को देकर आया, अबू बकर को देकर आया, अली को देकर आया, उस्मान को देकर आया, उमर को देकर आया, अपने सहाबा को देकर आया, उबई बिन काब को देकर आया, उसैद को देकर आया, इन लोगों के हवाले पूरी उम्मत के हवाले कुरान करके आया। मेरा रब कहेगा अच्छा आपने कुरान अपनी उम्मत को दे दिया, अच्छा तो जाओ अपनी उम्मत को बुला कर लाओ, हम आपकी उम्मत से सवाल करेंगे हमारे कुरान को उन्होंने कहां डाला? अब उम्मत की हालत तो नबी को पता है ना। ताजदार मदीना फरमाएंगे मौला मेरी उम्मत तेरे सामने सवालों जवाब करे, तेरे सवालों का जवाब दे, मेरी उम्मत में ये ताकत नहीं है। तो रब कहेगा फिर क्या चाहते हो? मौला मुझे इजाजत दे मैं जरा आदम के पास होकर आता हूँ। मेरा रब कहेगा ठीक है इजाजत है, आप आदम के पास आएंगे, आदम से कहेंगे आदम औलाद आपकी है उम्मत मेरी है, अगर कुरान को छोड़ने के बाइस मेरी उम्मत जहन्नम में जाएगी, अगर तकलीफ मुझे होगी, एहसास मुझे होगा तो दर्द आपको भी होगा, इसलिए कि औलाद आपकी ही है। हजरत आदम फरमाएंगे कहना क्या चाहते हो, आपकी तलब क्या है, आपकी चाहत क्या है? मेरे आपके आका फरमाएंगे आदम एक काम कर लेते हैं, मेरी उम्मत के आधे गुनाह तुम अपने सर ले लो और अपनी उम्मत के आधे गुनाह मैं अपने सर ले लेता हूँ, मेरी उम्मत गुनाहों से बचकर जन्नत में जाने वाली बन जाएगी। क्या नबी अल्लाह ने दिया है और किस नबी की उम्मत में अल्लाह ने बनाया है। क़यामत का मैदान न अली का तस्वुर, न फातिमा का तस्वुर, न अबू बकर का ख्याल, न उमर का ख्याल, न अली का ख्याल, न किसी और सहाबी का तस्वुर। ख्याल ये है कि ये गुनहगार कुरान के ना पढ़ने वाले, अबू बकर तो कुरान का पढ़ने वाला, उमर तो कुरान की तिलावत करने वाले, उबई तो कुरान की तिलावत करने वाले, उस्मान तो एक रात में एक रकात में अल्लाह के कुरान को पूरा पढ़ने वाले। मेरे प्यारो ये सहाबा इकराम तो कुरान के कारी थे, बेहतरीन पढ़ने वाले थे, कुरान करीम को पूरा करने वाले थे, हक अदा करने वाले थे। लेकिन नबी को ख्याल आएगा मेरा, नबी को ख्याल आएगा आपका, नबी को ख्याल आएगा इस उम्मत का, इस उम्मत का क्या बनेगा? ताजदार मदीना फरमाएंगे मेरी उम्मत के आधे गुनाह तुम अपने सर ले लो और अपनी उम्मत के आधे गुनाह मैं अपने सर उनका बोझ ले लेता हूँ, मेरी उम्मत गुनाहों से बचकर जन्नत में जाने वाली बन जाएगी। क्या मोहब्बत थी मेरे नबी के दिल में ना। मैं समझता हूँ एक माँ के दिल में भी ये प्यार नहीं हो सकता, एक बाप के दिल में भी नहीं हो सकता, किसी आशिक के दिल में भी नहीं हो सकता। मुझे याद आया अरफात का मैदान है, नबी सवारी पर सवार है, सहाबा का जब में गफीर है, ऊपर क्यों शामियाना नहीं, ऊपर कोई छाता नहीं। नबी को ख्याल आया मेरी उम्मत इसी मैदान में जमा होगी, नबी ने रोना शुरू कर दिया, आंख से आंसू निकले।
1 मिनट रो लेते, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा। अल्लाह की कसम मेरे बाप का इंतकाल मेरी आंखों के सामने हुआ, मेरी माँ का इंतकाल मेरी आंखों के सामने हुआ। मैं रोया, आंख से आंसू निकले, खूब निकले, लेकिन कोई आया तो मेरी आंख से आंसू निकले फिर बंद हो गए, फिर कोई आया फिर आंख से आंसू निकले फिर बंद हो गए। लेकिन कुर्बान जाइए, ताजदार मदीना इमामुल अंबिया उम्मत के में रोना शुरू किया। 1 मिनट नहीं, 2 मिनट नहीं, घंटा नहीं, 2 घंटा नहीं, उलमा ने तखमीना बयान किया कि गालिबन मुसलसल 5 घंटे तक नबी की आंख का आंसू बंद नहीं हुआ। कितने घंटे तक? 5। और कौन सा महीना था? अप्रैल का। ये फरवरी है ना, अगला मार्च आएगा कितनी गर्मी होगी, फिर अप्रैल आएगा कितनी गर्मी होगी। ऊपर छाता नहीं, नीचे पथरीली जमीन है, पथरीला इलाका है, तेज धूप लगती है। मेरे प्यारों अंदाजा लगाओ क्या गर्मी का आलम होगा, क्या तपिश का आलम होगा। उसी तपिश के आलम में नबी सवारी पर सवार होते होते मुसलसल 5 घंटे तक आंख से आंसू निकालते रहे। और क्या तड़प थी। मौला इस उम्मत का क्या बनेगा? इस उम्मत को माफ कर दे, इस उम्मत को माफ कर दे, मेरी उम्मत को बचा ले, मेरी उम्मत को बचा ले। वही तसव्वुर कल क़यामत के मैदान में, आए हाय ये तो फैसले का दिन है। यहाँ तो जिसे जिस जो करनी है, इसने जो कर लिया है उसे वैसी भरनी होगी। लेकिन तड़प देखो, प्यार देखो, ताजदार मदीना इमामुल अंबिया का क़यामत के मैदान में आए, मेरी उम्मत के आधे गुना तुम ले लो, आधे में ले लेता हूँ, बच जाएगी। आदम कहेंगे नहीं 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 नहीं, तुम्हारी उम्मत के गुनाहों का बोझ ये आदम बर्दाश्त नहीं कर सकता, ये मेरे में ताकत नहीं है, आप चले जाइए। ताजदार मदीना आएंगे, रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, अल्लाह से क्या कहेंगे? वक़ाल रसूल या रब्बी इन्न कौमी इत्तखदू हादल कुरान महजूरा। मेरे मौला इस कौम ने कुरान को छोड़ दिया था, बस ये पुष्ट डाल दिया था, इस कौम ने कुरान का हक अदा नहीं किया। अल्लाह फरमाएगा अच्छा तो अब जरा लाइन बना दो, कुरान पढ़ने वाले एक तरफ, कुरान के ना पढ़ने वाले एक तरफ, कुरान से मोहब्बत करने वाले एक तरफ, कुरान से मोहब्बत ना करने वाले एक तरफ। लाइन लग जाएगी, कयामत का मैदान, हश्र की गर्मी, सवा नेज़े पर ये सूरज। आज साइंस का मानना ये है कि हमारी जमीन से ये सूरज 1400 करोड़ 30 लाख मील की ऊंचाई और लंबाई, 14 करोड़ 30 लाख मील की ऊंचाई, किलोमीटर नहीं मील, मील बड़ा होता है, पौने 2। इतनी ऊंचाई पर ये सूरज है। और साइंस ने क्या लिखा है जानते हो? कोई अगर सफर करना चाहे, इस सूरज पर जाना चाहे, वो ऐसे रॉकेट पर बैठे, जो रॉकेट 1 घंटे में 15,000 मील की रफ्तार से उड़े, उसे सूरज के किनारे पर पहुंचने में 40 साल लग जाएंगे। सूरज नहीं आएगा, दौर आएगा सैयारों का, एक करीबी सैयारा, एक बईदी सैयारा। करीबी सैयारे तक जाने के लिए 7,000 साल, बईदी सैयारे तक जाने के लिए 40,000 साल। फिर दौर आएगा कहकशाओं का, एक करीबी कहकशा, एक बईदी कहकशा। साइंस ने लिखा करीबी कहकशा तक जाने के लिए 7 लाख साल लगेंगे, बईदी कहकशा तक जाने के लिए 40 लाख साल लगेंगे। उसके बाद ये सूरज आएगा। सोचो इतनी ऊंचाई पर ये सूरज है। जब मई का महीना हो, अप्रैल का महीना हो, नंगे पांव सड़क पर चला नहीं जाता। कल कयामत का मैदान होगा, सूरज होगा कहाँ? सवा नेज़े पर, तपिश डालता होगा, गर्मी डालता होगा, सूरज में रोशनी ना होगी, अंधेरा होगा। रब ने कुरान करीम में फरमाया इदश शम्सु कुविरत व इदन नुजूमुन कदरत, अल्लाह इस सूरज को बेनूर कर देगा। ताजदारे मदीना ने फरमाया जमीन भी पीतल की बिछा दी जाएगी और इस जमीन के ऊपर बंदा खड़ा होगा, नंगा होगा, जिस्म पर कोई कपड़ा ना होगा, पाँव में कोई चप्पल ना होगा और सूरज की गर्मी और तपिश होगी। ऐसे आलम के अंदर मेरा अल्लाह फरमाएगा कि जाओ मेरे घर वालों को बुला कर ले आओ। फरिश्ते कहेंगे मौला तेरे घर वाले कहां से आ गए? तूने तो कुरान करीम में फरमाया कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद। मौला तू यकता, तेरी जात यकताई की, न तूने किसी को जना, न किसी से जना गया, न तेरा कोई शरीक। आज क़यामत के मैदान में तेरे घर वाले कहां से आ गए? मेरा रब कहेगा फरिश्तों जाओ जिनके सीनों के
के अंदर मेरा कुरान भरा हो, अरे जाओ जिनके सीनों के अंदर मेरे कुरान की आयतें हो, जाओ जिनके सीनों के अंदर मेरा कुरान महफूज हो, जाओ उनको पकड़ कर लाओ और मेरे अर्श के साए में जगह दे दो। उन्हें गर्मी लगती होगी, उन्हें पसीना आता होगा, अल्लाह के फरिश्ते जाएंगे हाफिज़ कुरान को, कुरान पढ़ने वालों को, कुरान की तिलावत करने वालों को, कुरान से मोहब्बत करने वालों को अल्लाह के अर्श के साए में जगह देंगे। मैं कहा करता हूं, सूरज की गर्मी हश्र के दिन, अल्लाह अल्लाह आलम हश्र के दिन, सूरज की गर्मी हश्र के दिन, अल्लाह अल्लाह आलम हश्र के दिन, घबराएंगे इंसान उस दिन सभी, होंगे पसीनों में गर्क सभी, ऐलान खुदा होगा फिर ये जो पढ़ते थे कुरान आ जाए, कुरान की आयत पढ़ पढ़ कर जन्नत के दर्जों पे चढ़ जाए। चाहते हो मुसलमान दर्ज मिले तो कुरान पढ़ो, कुरान सुनो, हर गम से मिलेगी निजाती तुम्हें, हर शक्ल से हल हो जाएगी। कुरान में वल्लाह वो है अथर, कुरान पढ़ो, कुरान सुनो, एक कौम को इज्जत देता है, एक कौम को जिल्लत देता है, कहता है हमारा हमसे नबी, कुरान पढ़ो, कुरान सुनो, कुरान की तिलावत कर गाफिल, फिल्मों से तुझे है क्या हासिल, कहता है खुदा जो है तेरा, कुरान पढ़ो, कुरान सुनो। ये अल्लाह का कुरान है जो तुम्हारे लिए दुनिया में हिदायत का जरिया बनकर आया और क़यामत में अल्लाह इसे रहमत बनाकर मोमिनीन के लिए सामने रखा। कुरान तुम्हारे लिए हिदायत भी है, रहमत भी, और इतनी बड़ी रहमत है, इतनी बड़ी रहमत है, अल्लाह की कसम खुश हो जाओ। क़यामत में जब पहुंचोगे ना, अल्लाह इसी कुरान की बदौलत अपना दीदार कराएगा। आज लोग गाने सुनते बड़े शौकीन हैं ना, कान से लीड नहीं हटती, और एक तसव्वुर लोगों का क्या है, मौलाना घर में लड़ाई बड़ी है, कमाई तो बड़ी अच्छी है अल्हम्दुलिल्लाह, लाख रुपए 2 लाख रुपए, लेकिन क्या करें, कमाई के बाद भी हमारे घर में लड़ाइयाँ बहुत है, दिलों में इंतिशार है, इफ्तिराक है, प्यार नहीं है। कोई वजीफा बता दो, या एक काम करो, कोई तावीज दे दो, चलो भाई तावीज ले जाओ। एक नहीं, मैं कहता हूँ 1000 तावीज भी आप दबा दो, काम बन जाए। बोलो क्यों नहीं बनेगा? मेरे और आपके घर में नाच गानों की आवाजें मुस्तकिल हैं, और नबी ने फरमाया गाना सुनना, गाना बजाना ये दिल में निफाक पैदा करता है, दिल को मुनाफिक बनाता है, और जब दिल में निफाक आ गया तो प्यार कहां से आएगा? जनाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत की निशानियां वक़द फिल क़ैनात वल मआज़िर, जहां और निशानियां हैं, एक निशानी ये भी है गाने बजाने के सामान को खत्म कर दूं, और मेरे नबी ने गाने बजाने के सामान राइज हो जाएंगे। मेरे नबी ने फरमाया मैं दुनिया में आया, आने के बहुत से मकसद हैं, एक मकसद ये भी है कि अल्लाह ने मुझे इसलिए भेजा है दुनिया से गाना बजाना खत्म कर दूं। अब एक बात बताओ, नबी तो खत्म करने आए, उम्मती कहे आप कहते रहो हम तो नहीं करेंगे। शादियां होगी तो ढोल ताशे बजाएंगे, डीजे बजाएंगे, सामने मस्जिद हो बेहुरमती करेंगे, एक मस्जिद गिर जाए तुम्हारी चीखें निकल जाती हैं, और अल्लाह की मस्जिद के सामने, अल्लाह के घर के सामने आप लोग अल्लाह के कुरान, अल्लाह की मस्जिद की, अल्लाह के घर की बेहुरमती करते हो। जब शर्म नहीं आती, जब हया नहीं आती, जब दिल में चीखें नहीं निकलती? अल्लाह के बंदो डांस करने वाले, गानों के ऊपर अपने जिस्म को लहराने वाले, ताजदारे मदीना का फरमाने आली बता रहा हूँ, किसी मौलवी का फतवा नहीं, नबी ने फरमाया जो गाना गाकर लहराए, इतराए या उस पर डांस करे, नबी ने फरमाया वो कुफ्र के करीब, वो कुफ्र के करीब पहुंच गया जिसने नाच किया, डांस किया। और आज ये आम बात हो गई हमारी जिंदगियों के अंदर, शादी आती है और गाने और नाच आम हो जाते हैं।
नबी ने फरमाया क़यामत का मैदान होगा। अल्लाह तबारक व तआला क्या फरमाएगा, अय्नल लदीना कानू युनज़्ज़िहूना अस्माअहुम अन अस्वातिल मज़ामीर। मेरे वो बंदे कहाँ हैं जिन्होंने दुनिया में गाना नहीं सुने। आज आ जाएं, अल्लाह की रहमत कामिला का मज़हर अतम अल्लाह आज दिखाने वाला है। जो आपको कुरान दिया है, अल्लाह आज उसके लिए अपने बंदों पर रहम करने वाला है। रहम के साथ सारे के सारे लोग जमा होंगे। बोला क्या बात है, सिर्फ वो आए जिन्होंने गाने नहीं सुने, वो आए जिन्होंने गाने सुने थे तौबा कर ली, कुरान के आशिक बने, कुरान के पढ़ने वाले बने। अय्नल लदीना कानू युनज़्ज़िहूना अस्माअहुम अन अस्वातिल मज़ामीर। मेरे वो बंदे कहाँ हैं जिन्होंने दुनिया में अपने कानों को कुरान से आशना किया, जिन्होंने अपने कानों में कुरान का रस खोला है। आज वो आ जाएं, उन्हें कुरान का मजा दिया जाएगा। ताजदारे मदीना इमामुल अंबिया ने फरमाया सारी इंसानियत जमा होगी। अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा हूरो इधर आओ। अल्लाह अपनी जन्नत की हूरों को बुलाएगा और जन्नत की हूरों से कहेगा आओ मेरे कुरान को पढ़ना शुरू करो। दुनिया वालों ने कुरान पढ़ा है, दुनिया वालों ने कुरान सुना है, लेकिन आज जन्नत के अंदर अल्लाह हूरों की ज़बानी आपको अपना कुरान सुनाएगा। उनकी ज़बानों की मिठास, उनकी ज़बानों की लज्जत और जन्नतों की आवाज, सोचिए क्या मजा होगा, क्या लुत्फ होगा। और जब ये पढ़ना शुरू करेंगी तो 1 मिनट नहीं, 1 घंटा नहीं, 2 घंटा नहीं, 1 रात नहीं, 2 रात नहीं, महीना नहीं, 1 साल नहीं, तुम्हारे मेरे आका ने फरमाया ये जन्नत की हूरे बराबर 70 साल पढ़ेंगी। 70 साल तक जन्नती कान लगाकर अल्लाह का कुरान सुनेगा। हमारी उम्र कितनी हो रही भाई? और पहली महफिल में एक उम्र अल्लाह फरमाएगा बंदो बताओ मेरे हूरों की ज़बानी कुरान कैसा लगा। कहेंगे मौला बड़ा मजा आया, बड़ा लुत्फ आया। अल्लाह फरमाएगा तो आओ हम तुम्हें इससे भी अच्छा सुनवाते हैं। कोई इंसान नए शहर में पहुंचे ना, आना भाई कैसा लगा चिकन टिक्का, बड़ा मजा। अरे यार एक होटल और उसका खिलाऊंगा, बड़ा अल्लाह फरमाएगा आओ इससे अच्छा सुनवाता हूँ। बंदे कहेंगे मौला इससे भी अच्छा है कि हाँ। अल्लाह दाऊद को पुकारेगा। अल्लाह ने दाऊद की आवाज में मौजिज़ा अता फरमाया, उनकी जबान में अल्लाह ने जादू रखा था। अल्लाह फरमाएगा आओ नबी पाक अल्लाह ताला हजरत दाऊद को पुकारेगा। दाऊद से कहेगा तुम मेरे कुरान को पढ़ो। हजरत दाऊद फरमाएंगे मौला तूने तो मुझे दुनिया में आवाज अच्छी दी थी, यहाँ कहाँ? अल्लाह फरमाएगा नहीं मैंने वापस कर दी। अब दाऊद पढ़ना शुरू करेंगे, उनकी जबान में अजीब लज्जत थी, अल्लाह ने अजीब जादू रखा था। जब वो कुरान पढ़ना शुरू करेंगे जन्नती मस्त मगन होगा, उनके कुरान को सुनेगा। उनका पढ़ना भी एक दिन नहीं होगा, बराबर 70 साल पढ़ेंगे। जब वो रुकेंगे तो अल्लाह मालूम करेगा मेरे बंदो बताओ मेरा कुरान कैसा लगा, मेरा कुरान तुम्हें कैसा लगा, दाऊद की ज़बानी कैसा लगा। बंदे कहेंगे मौला बड़ा मजा आया, बड़ा लुत्फ आया। अल्लाह फरमाएगा तो आओ इससे भी अच्छा सुनवा। 70 140 साल तो गुजर गए और अभी कुरान ही चल रहा है जन्नत में। अल्लाह फरमाएगा इससे भी अच्छा सुनवाता हूँ। बंदे कहेंगे मौला इससे अच्छा क्या होगा? मेरा रब कहेगा अब कलाम तो मेरा होगा लेकिन जबान मेरे लाडले की होगी। कलाम तो मेरा होगा लेकिन जबान मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की होगी। आज आपने दुनिया के कारियों से कुरान सुना, लेकिन ताजदारे मदीना की आवाज और आपकी आवाज की लज्जत, अल्लाह के खजाने में जो सबसे आला तरन्नुम था अल्लाह ने अपने लाडले को दिया। सबसे प्यारा गला था अल्लाह ने अपने लाडले को दिया। सबसे प्यारी आवाज थी अल्लाह ने अपने लाडले को इनायत फरमाई। और मेरे नबी का अंदाज इतना निराला था जब आप कुरान करीम को पढ़ते तो अल्लाह की कसम तुफैल दोसी जैसे ईमान की हालत में आ जाते। हाँ कुफ्फार आते और अल्लाह के नबी को कुरान, अल्लाह के नबी के कुरान को छिप छिप कर सुना करते। अल्लाह ने आपकी आवाज में वो चाशनी रखी। आज कयामत का मैदान है और जन्नती जमा है जिन्होंने दुनिया में गाने नहीं सुने। अल्लाह का दरबारे आलिया है। अब मेरे तुम्हारे नबी अल्लाह के कुरान को पढ़ेगा, अल्लाह के कुरान को पढ़ेंगे और ताजदारे मदीना इमामुल अंबिया का पढ़ना होगा और जन्नतियों का सुनना होगा। इधर नबी का पढ़ना, जन्नतियों के कानों में रस खुलेगा, मस्तो मगन होंगे, कैफो सुरूर की मस्ती में डूब जाएंगे। ताजदारे मदीना पढ़ते जाएंगे और जन्नत के दरख्तों से एक साज की आवाज निकलेगी जो अजीब
किस्म की होगी जो जन्नतियों के दिलों में अजीब कैफियत पैदा करेगी। आहा, ताजदारे मदीना ने फरमाया उस जन्नत के अंदर जब मैं अल्लाह का कुरान पढ़ना शुरू करूंगा, जन्नती मस्तो मगन हो जाएगा, डूब जाएगा आवाज की मस्ती में, अल्लाह के कुरान के हुरूफ में। हाँ हाँ, मेरे नबी का पढ़ना भी एक दिन का ना होगा, बराबर 70 साल तक मेरे तुम्हारे नबी अल्लाह के कुरान को पेश करेंगे। और जब मेरे नबी रुकेंगे तो मेरा रब मालूम करेगा, बंदो बताओ मेरे हबीब की ज़बानी मेरा कुरान कैसा लगा, मेरे लाडले की ज़बानी मेरा कुरान कैसा लगा। बंदे कहेंगे मौला बड़ा मजा आया, बड़ा लुत्फ आया, लेकिन क्या करें तेरे लाडले की ज़बान इतनी प्यारी है, जी नहीं भरा, जरा अपने हबीब से कह दे और सुना दे। अल्लाह फरमाएगा नहीं नहीं इधर आओ, अभी तंगड़ी तो बाकी है, इससे भी अच्छा सुनवा दूं। बंदे कहेंगे मौला इससे अच्छा अब क्या होगा, कलाम तेरा था, जबान तेरे लाडले की थी। अब मेरा रब कहेगा बंदो अब कलाम भी मेरा होगा, जबान भी मेरी होगी और दीदार भी मेरा होगा। अल्लाह पर्दे हटाएगा सारे, रिजवान से कहेगा 70,000 नूरी पर्दे एक तरफ और मेरा रब आमने सामने। कुर्बान जाऊं जब एक बंदा अपने रब को देखेगा, हाय मौला तू इतना खूबसूरत है, तू इतना प्यारा है। अल्लाह अल्लाह को देखने वालों की निगाहें अल्लाह की जानिब, उनके हाथ अल्लाह की जानिब, दिल दिमाग अल्लाह की जानिब, मस्तो मगन हो के अल्लाह को देखोगे। अल्लाह अपना खिताब करेगा, अल्लाह अपना कलाम तुमसे तुम्हारे सामने पेश करेगा और अपने रब का दीदार करते होंगे। 70 साल तक अपने रब की जियारत करोगे। इन्नल्लाह जमील, अल्लाह बड़ा खूबसूरत है, बड़ा खूबसूरत है। सारी दुनिया फीकी है, सारे रंग फीके हैं। जब रब को देखोगे जन्नत भूल जाओगे, जब रब को देखोगे जन्नत की हूरें भूल जाओगे, जब रब को देखोगे जन्नत की नेमतें भूल जाओगे। अल्लाह को देखने में इतने मस्तो मगन होंगे। 70 साल तक देखने के बाद जब अल्लाह पर्दे गिराएगा, अल्लाह पर्दे में जाएगा, तो बंदे कहेंगे मौला ये क्या हुआ, ये क्या हुआ। हूरों से सुनवाया 70 साल, दाऊद से सुनवाया 70 साल, नबी से सुनवाया 70 साल, अपनी बारी आई तो पल में छिपा लिया। नहीं मेरे बंदो, मुझे देखते देखते, मुझे सुनते सुनते 70 साल गुजर गए। तो बंदे कहेंगे मौला जी तो भरा ही नहीं, एक झलक और दिखला दे, एक बार और देखना चाहते हैं। तो अब रब क्या कहेगा जरा उसे गौर से सुनना। नबी ने फरमाया, अल्लाह फरमाएगा मेरे बंदो रोजाना दीदार होगा, लेकिन जन्नतुल फिरदौस वालों। किसको भाई, किसको होगा? अरे सो गए क्या, सो गए भाई, खत्म कर दूं? अरे सो गए हो तो खत्म करूं, बताओ तुम कुछ बोलो तो सही। अरे यार बड़े चुप लोग हो, बोलने में भी कंजूसी से काम कर रहा हूं। जन्नतुल फिरदौस अल्लाह किसे देगा? अल्लाह के नबी ने फरमाया जन्नतुल फिरदौस वालों को रोजाना दीदार कराएगा अल्लाह। लेकिन ये जन्नतुल फिरदौस मिलेगी किसे? नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह ने जब जन्नतुल फिरदौस बनाई, सारी जन्नत अल्लाह की अमरे कुन कुदरत से बनी है। जन्नतुल फिरदौस को अल्लाह ने अपने दस्ते मुबारक से बनाया, अपने हाथ से बनाया। अल्लाह ने जब बना के मुकम्मल तैयार कर दी तो जन्नतुल फिरदौस से कहा कुछ के, उसने कहा मैं क्या कहूं? अल्लाह ने कहा कुछ भी कहो। तो जन्नतुल फिरदौस कहने लगी क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, ईमान वाले कामयाब हो गए, मेरे अंदर आएंगे, मजे मारेंगे। तो अल्लाह ने फरमाया बिइज़्ज़ती व बिजलाली ला युजाविरुनी फ़ी की बख़ील, मुझे मेरी इज्जत की कसम, मेरे जाहो जलाल की कसम, तेरे अंदर में किसी कंजूस आदमी को दाखिल नहीं करूंगा। भाई और कंजूस जानते हो कौन है? कंजूस का तो पता ही हो, नहीं पता कंजूस का? अब तुम्हारी जबान के बोल भी नहीं हिल रहे, तुमसे बड़ा कंजूस कौन होगा यार? हैं? नहीं, कंजूस आदमी दाखिल हो ही नहीं सकता जन्नत के अंदर, जन्नतुल फिरदौस के अंदर। नबी ने फरमाया सखी मेरी रहमत से जुड़ा है और कंजूस मेरी रहमत से दूर है, चाहे वो नमाजी क्यों, चाहे वो रोजेदार क्यों।
और सखी आदमी, सखावत करने वाला, अल्लाह के रास्ते में माल लुटाने वाला, गरीबों को खिलाने वाला, इआनत करने वाला, नुसरत करने वाला, लोगों की कुरान की मोहब्बत में देने वाला, मदरसों को देने वाला, मसाजिद को देने वाला, दस्तरखान को वसी करने वाला, लोगों को खाना खिलाने वाला। नबी ने फरमाया वो मेरी रहमत के करीब है, भले से वो आमाल में थोड़ा सुस्त ही क्यों ना हो। तो अल्लाह कहेगा दीदार होगा, लेकिन किसको होगा भी रोजाना? जन्नतुल फिरदौस। आम जन्नतियों को जुमे का इंतजार करना होगा, जुमे के जुमे इंतजार होगा। किसके भाई? जुमे के दिन दीदार हुआ करेगा। और जन्नतुल फिरदौस वाले जितने भी है रोजाना मजे मारेंगे अल्लाह का दीदार करके। याद रखना, जन्नत की नेमतों में सबसे बड़ी नेमत अल्लाह का दीदार होगा। जितना शिद्दत से अल्लाह को देखने के बाद दोबारा उसे देखने का शौक होगा, ये किसी जन्नत की नेमत का बंदे को नहीं हो सकता। अच्छा, बंदे कहेंगे मौला हम दुनिया से ही चले आए, हमें तो पता ही नहीं था तो इतना खूबसूरत, इतना हसीन है। तो बंदे कहेंगे मौला हमारी एक तमन्ना है, मा अबदना का हक़ इबादती वो मा अरफना का हक़ मारिफती। मौला हमने आज तक तेरी इबादत का हक अदा नहीं किया, हमने तुझे सही से जाना नहीं, पहचाना नहीं। अगर आपकी इजाजत हो तो हम आपको एक सजदा कर ले। मेरा रब फरमाएगा मेरे बंदो ये दुनिया नहीं है, ये जन्नत है। जन्नत यहाँ तुम मेहमान हो और मैं अल्लाह तुम्हारा मेजबान हूँ, और मेहमानों से काम नहीं लिया जाता। ऐश करो, मजे करो। अल्लाह ये कुरान उनके लिए रहमत साबित करेगा जिन्होंने दुनिया में गानों से परहेज करके अल्लाह के कुरान को पढ़ा होगा, कुरान को सीखा होगा, कुरान वालों से मोहब्बत की होगी, कुरान पढ़ने वालों से मोहब्बत की होगी। नबी का फरमाने आली, कुरान को सीखो, सिखाओ, कुरान के सुनने वाले बनो, कुरान से मोहब्बत करने वाले बनो। पांचवे ना बनना, उलमा की बुग़्ज़ ना करना, उलमा से अदावत ना रखना, इनकी बुराइयां ना करना, वरना हलाक हो जाओगे। क़यामत के मैदान में पहुंचोगे। यशफ़अु यौमल क़ियामति सलात अल अंबिया थुम्मल उलमा थुम्मल शुहदा। मेरे और आपके नबी ने फरमाया क़यामत का मैदान होगा, अल्लाह अंबिया से कहेगा सिफारिश करो, दूसरे नंबर पर अल्लाह उलमा को खड़ा करेगा और कहेगा अपने लोगों की सिफारिश करो। जिसकी सिफारिश करोगे तुम्हारी सिफारिश कबूल की जाएगी। अत-तरग़ीब व तरहीब की रिवायत ताजदार मदीना का फरमाने आलिया, मेरे आपके आका ने फरमाया जन्नत का दरवाजा होगा, एक आलिम खड़ा होगा, एक आबिद खड़ा होगा, इबादत करने वाला खड़ा होगा। अल्लाह इबादत करने वाले से कहेगा जा मेरे फजल से जन्नत में चला जा। ये कूदता हुआ जन्नत में जाएगा। आलिम खड़ा रह जाएगा। आलिम दिल में तसव्वुर करेगा, अल्लाह ने इल्म तो मुझे दिया, अल्लाह ने कुरान तो मुझे दिया, अल्लाह ने हदीस तो मुझे दी, लेकिन मुझसे पहले ये जन्नत में चला गया। अल्लाह अपने बंदे के हाल, दिल के हाल से वाकिफ, अपने बंदे आलिम दीन को अपने करीब करेगा और अपने बंदे से कहेगा मेरे बंदे मैंने उसे इसलिए जाने दिया कि उसे अकेले जाना है, तन्हा जाना है, और मैंने तुझे इसलिए रोका है अकेले न जा, तन्हा न जा। इश्फ़अ लिमन शि'ता, जिसके लिए चाहता है सिफारिश कर, और अपने साथ में जिसे ले जाना चाहता है जन्नत में लेकर। सोचो जिसकी आपने जिस इमाम का ताउन किया होगा तो इमाम भूलेगा फिर आप हैं? अच्छा हमारे यहाँ इमामों की तनख्वाह कितनी है? 10,000 15,000 जी 10,000 है ना, और कम है 6,000। आप इसका डबल कर सकते हो, कमेटी की जेब से नहीं जाएगा, लेकिन आप कर सकते हैं। आप पान खा लेते हैं, बीड़ी पी लेते हैं, सिगरेट पी लेते हैं, दिन में 20-30 रुपए आपके यूं चले जाते हैं और आपको एहसास भी नहीं होता। यहाँ तक कि एक मांगने वाला भी आ जाएगा तो 20 रुपए देने में आपको जर्रा बराबर झिझक महसूस नहीं होती। यह होती है भाई, सच्ची बता होती है। सोचो अगर हम हर जुमे को अपने इमाम का 50 से 20 से मुसाफा करें तो एक मोटी रकम इकट्ठी हो सकती नहीं, और आपको पता चलेगा इसका? बताइए, महसूस होगा। अगर आपकी जेब से 20 का नोट हर जुमे को निकल जाए तो आपको पता चलेगा कि यार मेरी जेब खाली हो गई। बोलो आप। और ये एक इमाम का ताउन भी होगा और इनसे मोहब्बत का इजहार भी होगा। कल क़यामत के मैदान में पहुंचोगे तो इमाम दूर से पहचान लेगा, ओहो ये तो 50 का देवे था, करीब आ जाए। नहीं अरे यार ये तो 100 का देवे था, करीब आ जाए। अल्लाह के बंदों, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमाने आली है उलमा से मोहब्बत करो। इनकी मोहब्बत कल क़यामत के मैदान में काम, क़यामत के मैदान में काम।
जनाब रसूलुल्लाह का फरमाने आली है। ये किसी मुफ्ती का कौल नहीं है, किसी इदारे का फतवा नहीं है, ये जनाब रसूलुल्लाह का फरमाने आली है। कुरान से मोहब्बत करो, अल्लाह ने इसे आपके लिए नसीहत का जरिया बनाया। इसे पढ़ो, इसे सीखो, इस पर अमल करो, इसे समझो। आप नमाज में जाते हो, मजा ही नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि आपको समझ नहीं आती। आप रोजाना भी अगर एक आयत सीखोगे अपने इमाम से, अल्लाह की कसम साल नहीं लगेगा, आपकी जितनी सूरतें याद है आपको उनका तर्जुमा याद होगा नहीं होगा? अच्छा बताओ। अब आप कहोगे अब तो बूढ़े समझ में नहीं आता, कमाल की बात है। टच मोबाइल तो बड़ी अच्छी चला रहे, तो इंग्लिश तो आती नहीं आपसे, हैं? इंग्लिश आती थी बड़े मियां से? बताइए। लेकिन टच मोबाइल है तो फर चला कसम से। तो कुरान नहीं आएगा। वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़िक्रि फहल मिन मुद्दकिर। जिस कुरान को अल्लाह ने आसान कर दिया वो क्यों नहीं आएगा? लेकिन कम से कम कोशिश तो करें, पढ़ने की कोशिश तो करें, समझने की कोशिश तो करें। मैं कहा करता हूँ, ईमान की दौलत खो बैठे, इस्लाम की अज़मत भूल गए, गैरों के फसाने याद रहे और अपनी हकीकत भूल गए। अखलाक का शीशा चूर हुआ, इंसाफ दिलों से दूर हुआ। अल्लाह का शिकवा याद रहा और अपनी शरारत भूल गए। कुरान के पारे पारे में अल्लाह से करते हैं बातें, मैदान अमल से दूर हुए। कुरान की तिलावत भूल गए, मीज़ान अमल से दूर हुए। दौलत के नशे में चूर हुए, इस्लाम मिटाना याद रहा, बातिल को मिटाना भूल गए। दुनिया का घर आबाद किया, उक़बा का घर बर्बाद किया। मुश्किल में खुदा को याद किया, आसा हुई मुश्किल भूल गए। मुँह देख लिया है शीशे में, पर दाग न देखा सीने में। दिल ऐसा लगाया जीने में, मरने को मुसलमान भूल गए। दाढ़ी को तुमने साफ किया और दिल को नबी के चाक किया। जिस काम से खुश होता है खुदा, वो काम मुसलमान भूल गए। दौलत के पुजारी बन बैठे, ओहदों के पुजारी बन बैठे। कारून की पैरवी करने लगे, आका की नसीहत भूल गए। क्या किस्ब ज़िना, क्या बुग़्ज़ दगा, हर एक हमारा फ़िल बुरा। इज़्ज़त के लुटेरे बन बैठे, इज़्ज़त की हिफाजत भूल गए। इस्लाम के गाजी बन न सके, हम दिल से नमाजी बन न सके। जिन सजदों में मिलता है वो खुदा, हम ऐसी नमाज़ें भूल गए। सीनों में कदूरत रखते हैं, आपस में नफरत करते हैं। सिखलाया नबी ने जो प्यारो वफा, वो प्यारो मोहब्बत भूल गए। ईमान की दौलत खो बैठे, इस्लाम की अज़मत भूल गए। गैरों के फसाने याद रहे और अपनी हकीकत भूल गए। अल्लाह मुझे भी आपको भी अमल की तौफीक अता फरमा दे। भाई पढ़ेंगे इंशाअल्लाह कुरान, सीखेंगे, समझने की भी कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। हम नमाजी हैं, तो नमाज भी नहीं आती, कुरान तो बड़ी चीज नहीं आती। फराइज पूछ लो जरा, वाजिबात पूछ लो, कौन बताएगा? यार मेरी नमाज में कोताही हो जाए, कैसे पूरी करूं? हर नमाज के बारे में मालूम करेगा इमाम साहब। नहीं, एक इमाम साहब गांव में आए थे, नए बिल्कुल नए थे। किसी को पकड़ लिया, पकड़ के बोले भैया तूने फजर पढ़ी थी? बेचारा देहाती आदमी था, गांव का रहने वाला, जंगल जाने वाला, कभी नमाज में आता नहीं था। कहने लगा इमाम साहब पढ़ी थी, झूठ बोल दिया। तो इमाम भी थोड़ा जिद्दी किस्म का था, कहने लगा अच्छा पढ़ी थी तो ये बता कितनी रकात पढ़ी थी? तो
घूम गया यार, कितनी बताऊं, फजर की नमाज है, पहली नमाज है, 2-4 रकात तो होगी नहीं। सोच विचार करके हाथ रख के बोला इमाम साहब सही से याद नहीं आ रही, लेकिन 14 तो पढ़ी थी। इमाम बोला अच्छा 14 पढ़ी थी, जरा लट उठा के लिए बेटा। बोले इमाम साहब याद आ गया, लट की जरूरत ना है, वो याद आ गया, धोखा लग गया था, 14 नहीं 20 थी वो 20। इमाम साहब बोले ये बात नहीं आ गया, तू लट लेकर आ। इमाम साहब मोहर लगा दो, ना इधर ना इधर, 24 पढ़ी थी। इमाम साहब जो पीछे भागे तो घर पहुंचा, दरवाजा बंद किया, बीवी से कहा देख इमाम मेरे पीछे पड़ा है, दरवाजा मत खोल देना। तो बीवी कहने लगी अजीब आदमी, इमाम से भी लड़के आ गए। बोले मैं कहाँ लड़ा हूँ, बड़ा हट्टी और जिद्दी किस्म का इमाम आया गाँव। बोले क्या हुआ, मैंने कहा कि फजर, मुझसे पूछने लगा फजर पड़ी थी, मैंने वैसे कह दिया। तो कहने लगा कितनी पड़ी थी, इतना जिद्दी इमाम है, 14 बताई नहीं माना, 20 बताई नहीं माना, 24 बताई तब भी नहीं माना। तो बीवी कहने लगी पागल हो गए, 4 बता देते मान जाता। तो कहना पागल है, वो 24 में नहीं माना, 4 में कैसे मान जाता। तो ये हाल है हमारा सच्ची। अल्लाह हमें समझ दे, अमल की तौफीक अता फरमाए। भाई कुरान पढ़ने पढ़ाने वालों से मोहब्बत रखो, इनका ताउन करो, इस कुरान को समझो। अल्लाह ने दौलत आपको क्या दी है, इन्नल्लाह यरफ़उ बिहादिल किताबि अक़वामा व यज़उ बिही आख़रीन। अल्लाह इसी से इज्जत देगा, इसी से जलील करेगा। आप इसे हाथों में थामोगे, अपने सीनों में उतारोगे, आप देखना आप जमाने के बादशाह बनोगे। और जब आपके सीने से दूर होगा, जबानों से दूर होगा, अल्लाह ताला इसी कुरान की बदौलत आपको दुनिया में जलील कर देगा। अगर कुरान की नाक़दरी करें, अल्लाह को कुरान से मोहब्बत है, खुद जनाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान से इतनी मोहब्बत है कि बेजा। हजरत आसिम रहमतुल्लाह अलैह कुरान के बड़े कारी, कुरान पढ़ाते थे। तो एक दिन बच्चे ने पूछा हुजूर जब आप कुरान पढ़ते हो या कुछ भी बोलते हो, आपके मुंह से खुशबू आती है, ये समझ में नहीं आता। वो कहने लगे आप लोगों का वहम है, कोई खुशबू नहीं आती। एक दिन एक तालिब इल्म ने तन्हाई में पकड़ा, हुजूर बताना होगा आपके मुंह से खुशबू क्यों आती है, क्या वजह है। तो हजरत यासीन ने फरमाया बेटा मेरा इरादा था मेरे राज को कोई ना जाने, लेकिन आपकी मैं ज्यादा जिद की है इसलिए बता देता हूँ। फरमाने लगे एक दिन मैं कुरान पढ़ाकर इशा के बाद अपने हुजरे में आया, मस्जिद नबवी में कुरान पढ़ाते थे, आकर सो गया तो ख्वाब में जनाबे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और मुझसे फरमाया आसिम खड़ा हो जा। मैं खड़ा हुआ, नबी ने फरमाया मेरे करीब आ, मैं नबी के करीब पहुंचा। नबी ने फरमाया आसिम तो अल्लाह का कुरान बच्चों को पढ़ाता है, मेरा जी चाहता है तेरे होठों को छू, तेरे होठों को बोसा दे दूं। फरमाते हैं ख्वाब में नबी ने अपने लबों को मेरे लबों पर रखा, जब से नबी ने अपने होठ मेरे होठ पर रखे हैं, मेरे मुंह से खुशबू बराबर आती है, निकलती नहीं है। जिस कदर प्यार है कुरान से, खुद जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप पढ़ोगे आप भी अल्लाह के प्यारे बन करेंगे कोशिश इंशाअल्लाह। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमा दे। सुस्त हो रहे हो तुम भी यार, मैं तो सो लिया था भाई आराम से आके, थका हुआ था। 2-3 शेर हैं वो पेश करता हूँ आपके दरबार आलिया में, फिर अपनी जगह लेता हूँ। और क्या है भाई, तुम भी सो हम भी सोएंगे, चल के और क्या, ठीक है। कुछ बोल तो रही नहीं यार, बड़े अजीब बात। सुभान अल्लाह। इतना कहने के बाद एक बोला है, अच्छा ठीक है मैं सलाम पेश करूंगा, उससे पहले 2-3 शेर पेश कर देता हूँ। सलाम तो मेरी पहचान है, इसलिए बगैर सलाम के इख्तिताम नहीं करता तकरीर का, तो वो आप सुनेंगे इंशाल्लाह। लेकिन उससे पहले 2-3 अशार नात के पेश कर देता हूँ, अगर इजाजत हो, आप थक नहीं रहे हो तो, वरना तुम अपनी जगह ले लेता हूँ, ठीक है। सुना दे जी, इतना लंबा सफर कराया तो कुछ सुन लो यार। बन के तारीकियों में ज़िया आ गए, बन के तारीकियों में ज़िया आ गए, बन के तारीकियों में ज़िया आ गए, बन के तारीकियों में ज़िया आ गए। मुस्तफा 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 आ गए, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। मुस्तफा आ गए, गोद में उनको ले के कहें सादिया, गोद में माशाअल्लाह ले के कहें सादिया,
दिया गोद में उनको ले के कहे सादिया गोद में उनको ले के कहे सादिया देखिए हुस्न की इंतहा माशाअल्लाह बहुत सुभान अल्लाह इंतहा आ गए मुस्तफा 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 आ गए। बहुत खूब। ये जो शेर है ना ये मेराज की रात का समझिए आप अक्सा में पहुंचे तो नबियों ने आपको देखकर क्या कहा वो मैं शेर पेश करता हूं। इरशाद। उनको देखा तो ये अंबिया ने कहा उनको दे मस्जिद अक्सा उनको देखा तो ये अंबिया ने कहा उनको देखा तो ये अंबिया ने कहा उनको देखा तो ये अंबिया ने कहा हम सभी मुक्तदी मुक्तदा आ गए हम सभी मुक्तदी मुक्तदा आ गए हम सभी मुक्तदी मुक्तदा आ गए मुस्तफा 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 आ गए। बहुत खूब हजरत। अब किसी भी नबी की जरूरत नहीं 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 क्योंकि अब खातमुल अंबिया आ गए माशाअल्लाह। अब सुभान अल्लाह अंबिया आ गए मुस्तफा 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 आ गए सुभान अल्लाह। बहुत मुस्तफा मुस्तफा आ गए सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अच्छा सलाम सुनोगे? जी जी इरशाद। जब मैं कहूँ तुम पे लाखों सलाम तो आपको मेरे साथ जोर से पढ़ना है तुम पे लाखों सलाम। देखो ये पिंडाल गूंजना चाहिए। ठीक है गूंजेगा इंशाअल्लाह। जब भी मैं कहूँ तुम पे लाखों सलाम। अल्लाह कुरान में कहता है इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। ईमान वालों अल्लाह भी फरिश्ते भी नबी पर दुरूद व सलाम पेश करते तुम भी भेजा करो। ठीक है ये हमारा हक है कि हम नबी पाक अलैहिस्सलातु व सलाम पर दुरूद व सलाम पेश करें। करेंगे इंशाअल्लाह। माने हरफ कुन मस्दरे भी खबुर मसहफे लम यज़ल पेश लफ्ज़े अज़ल जुमलाए इख्तिताम तुम पे लाखों सलाम तुम पे पे लाखों सलाम और गर्क तेरी मोहब्बत में जो दिल नहीं उसका ईमान कामिल नहीं। गर्क तेरी मोहब्बत में जो दिल नहीं उसका ईमान कामिल नहीं। तेरी चाहत की खैर तुझको चाहे बगैर मुझ पे जीना हराम तुम पे लाखों सलाम
लाखों सलाम, तुम पे लाखों सलाम। होठ जब मुत्तसिल हो तेरे इस्म से, इस्म के माने नाम के आते हैं, मुत्तसिल के माने मिलने के आते हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहकर जब दोनों होठ आदमी के मिलते हैं तो मोमिन के आशिक के जिस्म से क्या निकलता है? शायर ने कहा, होठ जब मुत्तसिल हो तेरे इसमें से रोशनी फूटती है, मेरे जिस्म से रोशनी फूटती है, मेरे जिस्म से। और यूं तेरी मशअले मेरे अंदर जले, जगमगाऊं तमाम तुम पे लाखों सलाम, तुम पे लाखों सलाम, तुम पे लाखों सलाम। और जन्नते फिक्र में ज़हन रहने लगा, मैं गज़ल को तेरी नात कहने लगा। तेरा एहसान है मेरी पहचान है, अब फ़क़त तेरा नाम तुम पे लाखों सलाम, तुम पे लाखों सलाम, तुम पे लाखों सलाम, तुम पे लाखों सलाम, तुम पे लाखों सलाम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, क्या खूबसूरत तरन्नुम के साथ सुना रहे थे। मेहताबा तू किरने डालता है जर्रे जर्रे पर, मेहताबा तू किरने डालता है जर्रे जर्रे पर, चमक जाता है जिसमें नूर इस्तेदाद होता है। और जागे बैठे हो, अरे बोलो, जागे बैठे हो, सुभान अल्लाह बोलो, जो नहीं बोलेगा वो होएगा। बोलो बोलो, मेहताबा तू किरने डालता है जर्रे जर्रे पर, चमक जाता है जिसमें नूर इस्तेदाद होता है। और कमाले आशिकी हर शख्स को हासिल नहीं होता, हजारों में कोई मजनू कोई फरहाद होता है, हजारों में कोई मजनू कोई फरहाद होता है। और हजरत के तरन्नुम वाली आवाज से एक शेर मेरे जहन में आया कि वो आए जिनको आने की जमाने को जरूरत थी, वो आए जिनको आने की जमाने को जरूरत थी, वो आए जिनकी आमद के लिए बेचैन फितरत थी, वो आए नग़्मे दाऊद में जिनका तराना था, वो आए गिरिए याकूब में जिनका फसाना था, वो आए जिनको हक में गोद की खलवत में पाला था, वो आए जिनके दम से अर्श आज़म पर उजाला था। आप लोग तो ऐसा बैठा लेने लग रहा कि झगड़ा हो के आया है। हाँ, इतना खामोश है कि लग रहा कि अनबन है। हाँ, ये खामोशी बता रही है कि मामलात में अनबन। ऐसी मियाँ बीवी में झगड़ा हो गया एक बार, मियाँ बीवी में झगड़ा शुरू, मियाँ कहने लगा तुमसे डरते हैं, तब बीवी कहती है कि तुमसे डरते हैं, किसके कहे, अरे हमसे काहे नहीं डरोगे। तब बीवी कहने लगी कि आप आए थे देखने तक के को आए थे, 50 सुन रहे हैं भाई। हाँ, लग रहा कि हाँ अनबन चल रहा, जो सुभान अल्लाह नहीं बोलेगा समझ लो मामला टेढ़ा है। बीवी कहने लगी कि
आप आए थे तो के गो आए थे, 50 गो, और बाराती में तो 200। इसकी पता नहीं चल रहा है आपको? हमको देखिए शेरनी की तरह, हम अकेले तो हर घरे चले आए। मोहब्बत में हर एक बीवी गजल का शेर लगती। तवज्जो है? अरे आज की रात मुसाफिर हूँ तेरी बस्ती में, शब का तारा हूँ नजर आके चला जाऊंगा। बोलो बोलो, मोहब्बत में हर एक बीवी गजल का शेर लगती है। खफा होती है तो बारूद का एक ढेर लगती है। मोहब्बत में हर एक बीवी गजल का शेर लगती है, और खफा होती है तो बारूद का एक ढेर लगती है। लेकिन मर्द को गुस्सा इसलिए जल्दी नहीं आता, बड़ा बर्तन गर्म होने में थोड़ी देर लगती है।